Hello students, today we are going to take a chapter in civics, power sharing. So let's take an overview of this chapter. With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusions about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapters. Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the states of Haryana. It has borders with France and Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgian population speak German. In the capital city of Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community, who got the benefit of economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities. During the 1950s and 1960s, the tension between the two communist communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. तो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा देश है यूरोप कॉन्टिनेंट में, यानी ये अपना जो हरियाणा है इससे भी छोटा है साइज़ में, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है हरियाणा के पॉपुलेशन से आधा है. यहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है इस देश का, एथनिक मतलब जो सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in the common descent because of similarities of physical types or of culture or both. The need not always have the same religion or nationality. So ethnicity जैसा जो केरलाइट्स है वो भले ही या तमिलियंस भले ही श्रीलंकन तमिलियंस हो या इंडियन तमिलियंस हो, they belong to one ethnic group. They may be belonging to different religion. A Tamilian may be a Hindu, a Christian or a Muslim. So such a group is called as a ethnicity या ethnic group. तो यहाँ का जो बेल्जियम का जो एथनिक ग्रुप है वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप है. किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स है देखो, जो टोटल पॉपुलेशन का 59% है वह फ्लेमिश रीजन में रहता है और डच लैंग्वेज बोलता है, और जो दूसरा 40% लोग जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और जो 1% के जो लोग हैं वो बेल्जियंस है और वो जर्मन बोलते हैं. कैपिटल ब्रसल्स में 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं. तो इस प्रकार से एक बहुत ही मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कल्चर आपको बेल्जियम में दिखाई देता है.
प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पर आती है, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उनके पास में मैक्सिमम पावर्स था, उनके पास में मैक्सिमम दौलत थी। तो 1950s और 1960s में एक बहुत बड़ी टेंशन यहाँ पर खड़ी हो गई थी इस पावर शेयरिंग को लेकर, इस वेल्थ शेयरिंग को लेकर। तो डच स्पीकिंग जो मेजॉरिटी में थे, बट कैपिटल कंट्री में, कंट्री के कैपिटल में वो माइनॉरिटीज़ में थे। लेट अस कंपेयर दिस to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, 74%, and the Tamil speakers, 18%. Among Tamils, there are two subgroups. Tamil natives of the country are called as Sri Lankan Tamils, 13%. The rest, whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period, are called as Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamils and Sinhalas. तो अगला जो ग्रुप है, बेल्जियम के अलावा यहाँ पर एक और एक कंट्री के बारे में जिक्र किया गया है, और वो है तमिलियन कंट्री या श्रीलंकन कंट्री। तो श्रीलंका जो है ये इंडिया के साउथ में एक आइलैंड नेशन है, और यहाँ पर 2 करोड़ की आबादी है। इस देश की 2 करोड़ की आबादी है, और ये लगभग हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर ही है। और साउथ एशिया में जैसा होता है, श्रीलंका में बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, बहुत ही विविध धर्म के विविध भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। सिन्हाला जो लोग हैं, सिन्हाला स्पीकर्स है, ये मेजॉरिटी में आते हैं। 74% जो मैं तमिलियन बार बोल रहा हूँ, जो श्रीलंकन्स है वह सिन्हालीज है, वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, और केवल 18% जो है वो तमिल बोलते हैं। अच्छा, तमिल में भी 2 प्रकार के तमिलियंस हैं। एक तो जो नेटिव तमिलियंस है, जो उसी देश के रहवासी है, कई सालों से वहीं पर रहते हैं, और दूसरा जो है वो इंडिया से माइग्रेट हुए हैं। जो नेटिव तमिल्स है वो श्रीलंकन तमिल्स कहलाए जाते हैं, इनकी 13% की आबादी है। और जो बाकी जो है, जिनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, ये कॉलोनियल टाइम में आए थे, दे आर कॉल्ड एज द इंडियन तमिल्स। जो श्रीलंकन तमिल्स है वह आप देखो, खास करके वह, अगर आप मैप देखेंगे श्रीलंका में, वह नॉर्थ श्रीलंका में और नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में, ईस्ट श्रीलंका और नॉर्थ श्रीलंका में आपको तमिलियंस दिखाई देंगे। तो मोस्ट सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। यहाँ पर जो सिन्हालीज जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, और बाकी जो तमिलियंस है वो हिंदूज़ भी है और क्रिश्चियंस भी है, हिंदूज़ भी है और मुस्लिम्स भी है। और क्रिश्चियंस जो तमिल्स है वह सिन्हाला भी है, और क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालाज। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, लेकिन वह सिन्हाला भी में भी गिनी जाती है और तमिलियंस में भी गिनी जाती है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली, इंडिया के बाद आज़ादी मिली, और यहाँ के जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ थे, क्योंकि मेजॉरिटी में थे,
तो वह चाहते थे कि यहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन रूल हो जाए, मेजॉरिटी के लोग जो है वो श्रीलंका को रूल करें। और डेमोक्रेसी जब यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे कड़े कदम उठाए जहाँ पर मेजॉरिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, यानी सिन्हाला को सुप्रीमेसी मिल जाए। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. तो कुछ साल बाद, आज़ादी मिलने के कुछ ही साल बाद 1956 में एक ऐसा नियम बनाया गया, एक ऐसा कानून बनाया गया कि केवल सिन्हाला को वहाँ का नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ये क्या हुआ, तमिलियंस को डिसरिगार्ड किए, तमिलियन को नज़रअंदाज कर दिए। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशंस फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिन्हाला लैंग्वेज नेचुरली जो सिन्हालीज़ होंगे उनके इस लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल होगा, तो जो भी एप्लीकेशन सिन्हालीज़ में आते थे उनको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते थे, या यूनिवर्सिटी में उनका एप्लीकेशन को मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से उनको फेवर किया जाता था। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। तो एक ऐसा कानून बनाया गया, एक नया कानून बनाया गया कि यहाँ का जो स्टेट रिलीजन होगा, श्रीलंका का जो स्टेट रिलीजन होगा वो बुद्धिज़्म होगा, और इसके अलावा और भी कोई जो रिलीजन यहाँ पर है, जैसे क्रिश्चियंस है या मुस्लिम्स है या हिंदूज़ है, वह स्टेट रिलीजन या इनको इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी जितना कि स्टेट रिलीजन को वहाँ पर मिलता है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो एक के बाद एक ऐसे नए नए जो कानून बनाए गए, तो यहाँ के जो तमिलियन स्पीकर्स थे उनको लगा कि श्रीलंका में इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इनके जो कल्चर है इनके खिलाफ साजिश या रची जा रही है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. उनको ये लगा कि इनके जो लैंग्वेज है और इनका जो कल्चर है इसके तरफ जो बुद्धिस्ट लीडर्स है उनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, ये जानबूझकर इनको इग्नोर कर रहे हैं। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interest. तो उनको क्या लगा कि यहाँ का जो कानून है और यहाँ की जो सरकार है ऐसे पॉलिसीज़ बना रही है जिससे जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा। श्रीलंकन तमिल जो है उनको उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, ख़ास करके जॉब्स के मामले में, और बाकी जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती है उस सब में उनको इग्नोर कर रहे हैं कि ताकि इनका जो इंटरेस्ट है, जो तमिलियंस का जो इंटरेस्ट है वो पूरा फुलफ़िल ना हो जाए। As a result, the relation between the Sinhala and Tamil communities strained over time. तो इसका परिणाम क्या हुआ कि सिन्हाला और तमिल्स के बीच में दरार आने चालू हो गई, उनके जो रिश्ते हैं वो टूटने चालू हो गए। The Sri Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language. तो फिर तमिल्स ने भी जोर लगाया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करी और तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज को में एक्सेप्ट करने की उनकी डिमांड होने लगी। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, बट देयर डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स was repeatedly denied. श्रीलंकन तमिल्स का क्या डिमांड था कि जहाँ पर तमिलियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर उनके पॉपुलेशन के अनुसार उन्हीं के लोगों को, तमिलियंस को ज़्यादा जॉब मिलना चाहिए, उनके लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मान लेना चाहिए। लेकिन जितना भी ये डिमांड कर रहे थे, सिन्हाली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इसको नकार रही थी, उनको एक्सेप्ट
नहीं कर रही थी। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam. Elam means state in northern and eastern part of श्रीलंका। तो क्योंकि श्रीलंका में तमिलियंस को नज़रअंदाज कर रहे थे तो उनका डिमांड क्या हुआ, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारा दूसरा ही देश चाहिए, हमें श्रीलंका से हटकर एक और एक देश बनाना है जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में रहेगा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। तो क्योंकि अब इनमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था, सिन्हालीज तमिलियंस को शक की नज़र से देखते थे और तमिलियंस सिन्हालीज के प्रति नाराज़ थे क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, उनको जॉब्स में मौके नहीं दिए जा रहे थे। तो इनके जो मूवमेंट्स थे तो धीरे धीरे वायलेंट होने लगे और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा शुरू हो गया। इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। फिर हुआ क्या कि बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग आपस में लड़ने लगे। जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग लड़ते हैं इसको सिविल वॉर कहते हैं। इसमें आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है। पुलिस और आर्मी कंट्रोल करने का काम करती है, लेकिन लड़ाई जो होती है दो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में होती है। लड़ाई जो होती है दो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में हो जाती है, इसको हम सिविल वॉर कहते हैं। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. ऐसे बहुत सारे परिवार को अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाकर शरण मांगनी पड़ी। वो शरणार्थी हो गए और वहाँ पर जाके शरणार्थियों की तरह रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। कईयों की तो नौकरी भी चली गई। You have read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. तो श्रीलंका वैसे इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड है, इंडिया से तो काफ़ी आगे है, लेकिन ये सिविल वॉर की वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। ये सिविल वॉर कब ख़त्म हुआ? 2009 में। सिंगल कम्युनिटी अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अब अगला पार्ट है इसमें अकोमोडेशन इन बेल्जियम। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। श्रीलंका से काफ़ी अलग पाथ फॉलो किया बेल्जियम ने। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। बेल्जियम ने जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, जो अलग अलग भाषा जो बोलते हैं और अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया। बिटवीन द 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से 1993 में अपने कानून को इन्होंने 4 बार बदला। ये 4 बार बदलने का मकसद क्या था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी आपस में मिलजुल कर शांति से एक रहवासी, एक देशवासी बन के साथ में रहे। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। जिस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, जिस प्रकार से अरेंजमेंट किया है, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही प्रकार की सरकार बनाई है और ये बहुत ही इनोवेटिव किस्म की सरकार है। Here are some of the elements of the Belgian model. Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो कानून क्या कहता है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के जो लोग होंगे वह सरकार में बराबरी 50-50% अपने पोस्ट को शेयर करेंगे। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. कुछ ऐसे स्पेशल लॉज बनाए हैं जब कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप से कुछ कल्चर को लेकर, कुछ लैंग्वेज को लेकर अगर कुछ नया कानून बनाना है तो उस कल्चर वालों की या उस लिंग्विस्टिक ग्रुप की अनुमति होनी
बहुत ज़रूरी है। एक मेजॉरिटी वोट उनको मिलना होगा, तभी उसमें कुछ चेंजेस लेके वो आएंगे। 10. नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। Many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये सबॉर्डिनेट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पावर्स है जो केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, जहाँ पर जो जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी उसके हिसाब से वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का कानून बनाएगा और अपने लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन कानून होगा वही इम्प्लीमेंट करेगा। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो ब्रसेल्स क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है और यहाँ पर एक अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट है और यहाँ पर जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन है बोथ कम्युनिटीज़ के। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ब्रसेल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में रहने के बाद में इनको इक्वल 50% का शेयर मिला है, क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैसा ही किया है। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language community. तो यहाँ पर एक तीसरी प्रकार की भी सरकार है, केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग no matter where they live. This government has the power regarding cultural, educational and language related issues. तो लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर जो स्पेशल कम्युनिटी है, जो स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वह इस सेक्शन के इंचार्ज बन जाते हैं। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated, even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है। तीन गवर्नमेंट है, अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट है, इक्वल शेयरिंग ऑफ सीट्स वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक का तो सब कुछ सही चल रहा है बेल्जियम में। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic line. एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्या है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनकी कंट्री जो है डिवाइड होने से बच गई। अगर इक्वल शेयरिंग नहीं होता तो शायद डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग में या फ्रेंच स्पीकिंग में इनमें भेदभाव होने की वजह से देश के बंटवारे हो सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि अभी तक का नहीं हुआ। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarters. तो इसलिए ब्रसेल्स को, जो ब्रसेल एक बहुत ही ओपन माइंडेड फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट है, इसलिए जो यूरोपियन यूनियन जब बनाया गया तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स है उसे ब्रसेल्स को ही चुना गया है। So read any newspaper for 1 week and make clippings of news related to the ongoing conflicts of wars. सभी इंडिया और चाइना का चल रहा है किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस मुद्दे को लेकर वो झगड़ा कर रहे हैं या वॉर करने की स्थिति पर आ गए हैं। A group of 5 students could pool their clippings together and do the following. अभी तो लॉकडाउन में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप केवल अपने क्लिपिंग्स अपने पास ही रखिए, जब क्लास खुलेगा तब हम देखेंगे। Classify these conflicts by their location. Your state, India, outside India. Find out the cause of each of these conflicts. How many of these are related to power sharing disputes? Which of these conflicts could be resolved by working out power sharing arrangements? What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies. बेल्जियम भी डेमोक्रेटिक कंट्री है और श्रीलंका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
Yet they dealt with the question of power sharing differently. तो देखो बेल्जियम ने कितनी समझदारी वाली बात की और किस प्रकार से उन्होंने पावर को शेयर किया, इक्वली पावर को शेयर किया, जबकि श्रीलंका ने जो सिन्हालीस थे वो अपना मेजॉरिटेरियन रूल बनाना चाहते थे. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. Such a realization resulted in mutually acceptable arrangements for sharing power. Sri Lanka shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of a country. तो श्रीलंका ने कुछ और ही हमें रास्ता दिखाया कि किस प्रकार से अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है तो वो फोर्स कर सकती है डोमिनेट करने के लिए और दूसरे को पावर शेयर करने से मना भी कर सकती है. Why power sharing is desirable? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. Imposing the will of majority community over the others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. तो अगर हम पावर शेयर करते हैं तो एक बात तो तय है कि देश का विभाजन नहीं होता, देश बढ़ता नहीं है जब हम पावर शेयर करते हैं. लेकिन अगर हमने विल अपना इम्पोज किया, मेजॉरिटी का विल इम्पोज किया, तो शुरुआत में तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन लगता है कि चलो जो मेजॉरिटीज़ है उसको उनका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, उनके पास जो मेजॉरिटी कम से कम जो मेजॉरिटी लोग रहते हैं उनका तो भला होगा, उनका तो हित होगा और इस प्रकार से मेजॉरिटी जो है वो तरक्की करेगी. लेकिन ये जो ये है केवल शॉर्ट टर्म गोल्स है, कुछ ही समय के लिए ये अच्छा होता है लेकिन बाद में जाके ये बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी करता है. और मुसीबत किस प्रकार की खड़ी करता है? टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल. तो अगर किसी माइनॉरिटी के प्रति अगर हमने क्रूरता दिखाई, किसी एक समाज के पीछे लग गए और उन्हें हमने तंग करना चालू कर दिया या उन्हें उनके साथ में अत्याचार करने लगे, आगे चल के घूम फिर कर जो चक्र जो है वो पूरा कंप्लीट होता है और मेजॉरिटी के ऊपर भी वैसी ही पीड़ा आती है जो कि माइनॉरिटी के ऊपर कभी आई थी. देयर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. वैसे देखा जाओ तो अगर पावर शेयरिंग है तो ही डेमोक्रेसी है. अगर आप पावर शेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप यू आर मिसिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर स्पेशली विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. तो पीपल हैव टू द राइट टू बी कंसल्टेड. उनका अधिकार है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी निर्णय पर आने से पहले, कोई भी नतीजे पर आने से पहले उनकी राय लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. तो एक legitimate government, एक सही सरकार वही होती है जिसमें उसके जो नागरिक है उसमें उसका हिस्सा बन जाते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए या कोई डिसीजन पे आने के लिए. Let us call the first set of reason prudential. प्रूडेंशियल का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेज. सो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मॉरल. वाइल प्रूडेंशियल रीजन्स स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मॉरल रीजन्स एम्फसाइज दैट द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल.
इस प्रकार से प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस हो सकते हैं पावर शेयर करने का। यहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स दिए हैं, कुछ कहानियाँ बताई गई है। चलो इसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये एंटोनेट स्टडीज़ इन अ डच मीडियम स्कूल in the northern region of Belgium. Many French-speaking students in her school want the medium of instruction to be French. Selvi studies in a school in the northern region of Sri Lanka. All the students in her school are Tamil speaking and they want that the medium of instruction be Tamil. If the parents of Ante and Selvi were to approach respective governments to realize the desires of the children, who is more likely to succeed and why? तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी है, जहाँ पर बेल्जियम की सरकार है, बेल्जियम में एक लड़की है, उसका नाम है एनेट जो है वो डच मीडियम स्कूल में जाती है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच है और उसके जैसे अधिकतम जो लोग हैं वहाँ पर फ्रेंच की भाषा बोलते हैं। वह चाहते हैं कि उनका स्कूल का जो मीडियम है वो डच से चेंज होकर फ्रेंच बन जाए। और श्रीलंका में एक ऐसी कहानी है। सेल्वी नाम की एक लड़की है जो नदन श्रीलंका में रहती है और यहाँ के जो लोग हैं तमिल भाषा के लोग हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो तमिल में हो जाए। तो क्या लगता है कौन सी देश की सरकार बात सुनने के लिए राज़ी हो जाएगी या ज़्यादा चांसेस है कि वो बात सुन ले, बेल्जियन या श्रीलंकन? ऑफ कोर्स बेल्जियम, है ना। तो बाजू वाले पन्ने में एक कहानी दी है, खलील्स डिलेमा। डिलेमा मतलब मुसीबत। खलील किस मुसीबत में पड़ गया? तो आपने शायद विक्रम और वेताल की कहानी सुनी होगी। ओके, एक ज़माने में दूरदर्शन के ऊपर विक्रम और वेताल का सीरियल आता था, बेताल पंचसी। 25 एपिसोड का ये सीरियल था, 25 एपिसोड थे, जिसमें राजा विक्रम आदित्य होते हैं। वो एक बहुत ही सूझबूझ वाले राजा है और एक योगी, एक साधु महाराज जो है वो उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शमशान घाट से एक पेड़ के ऊपर लाश लटकी हुई है, वो लाश को लेके आना है क्योंकि उसका जो यज्ञ उसी से पूरा हो जाएगा। तो राजा किसी को मना नहीं करते हैं। तो वैसे ही जो विक्रमादित्य जो है उनकी बात मानते हुए शमशान घाट जाते हैं और वहाँ से वेताल को उठा ले आते हैं। ये वेताल है। तो वेताल जो है राजा को मना करता है, राजा को समझाता है कि जो साधु है वो ढोंगी है, वो असली साधु नहीं है, वो तो खुद विक्रमादित्य की ही बलि चढ़ाने के ऊपर तुला हुआ है। लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य ने वचन दे रखा था, वो वचनबद्ध थे, वह अपना कार्य पूरा करना चाहते थे और इस शैतान को उठाकर वह या वेताल को उठाकर वह उस योगी के पास में, उस साधु के पास में ले जाना चाहते थे। तो वेताल बोलता है ठीक है, अगर तुम इतने ज़िद्दी ही हो तो चलो मैं आपको रास्ते में कहानी सुनाता हूँ। और उनसे कहता है अगर तुमको मेरे कहानी में से मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर तुमको उस सवाल के जवाब पता है और तुमने अपना मुंह बंद रखा तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो मैं उड़कर चला जाऊंगा। अगर तुमने मुंह खोला तो मैं उड़कर चला जाऊंगा। तो दोनों ही स्थिति में वेताल जो है वो अपर हैंड रहता है उसका। बोलता अगर तुमको इसका आंसर पता है और तुम शांत रहे तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, और तुमने मुंह खोला तो मैं उड़कर चला जाऊंगा। तो मतलब क्या, अगर वेताल के पास ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब विक्रम आदित्य के पास नहीं होगा तो ही वो पूरी अपने जो ये है प्रॉमिस है वो फुलफ़िल कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट दिया है विक्रम और वेताल का। एज़ यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक। ये मॉडर्न विक्रम है, हाँ, विक्रम जो है मोटर बाइक चला रहे हैं। एज़ यूजुअल विक्रम वॉज ड्राइविंग द मोटर बाइक अंडर अ वाव of silence and Vetal was the pillion rider. As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving.
This time the story went as follows. In the city of Beirut, there lived a man called Khalil. His parents came from different communities. His father was an Orthodox Christian and mother a Sunni Muslim. This was not so uncommon in this modern cosmopolitan city. तो ये बैरूट की बात कर रहे हैं जहाँ पर खलील नाम का एक इंसान रहता है. उसकी जो मम्मी जो है वो मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, और उसकी डैडी जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है. ये एक मॉडर्न सोसाइटी है, तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है इस मॉडर्न देश में. यहाँ पर तो ये बहुत कॉमन है कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज चलता रहता है. पीपल फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज़ दैट लिव इन लेबनान केम टू लिव इन इट्स कैपिटल बेरूट. बेरूट लेबनान का कैपिटल है. दे लिव टुगेदर इंटरमिंगल्ड येट फॉट अ बिटर सिविल वॉर अमंग देमसेल्फ. वन ऑफ खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर. तो ये काफ़ी मिलनसार लोग हैं यहाँ पर, एक दूसरे के सुख दुख में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी झगड़ा होता है जो सिविल वॉर में तब्दील हो जाता है. खलील का खुद अंकल जो है ऐसे एक सिविल वॉर में मारे गए थे. एट द एंड ऑफ द सिविल वॉर लेबनान्स लीडर्स केम टुगेदर एंड अग्री टू सम बेसिक रूल्स फॉर पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़. और जब सिविल वॉर ख़त्म हुआ तो यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो लीडर है, वो इकट्ठा हुए और बोले चलो हम ऐसे लड़ने से अच्छा तो ये है हम आपस में मिलकर पावर शेयरिंग की बात करते हैं. As per these rules, the country's president must belong to the Maronite sect of Catholic Christians. Maronite sect यानी एक कैथलिक क्रिश्चियन का एक सेक्शन है. यहाँ का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो केवल एक कैथलिक मैरोनाइट ही रहेगा. The Prime Minister must be from the Sunni Muslim community and the post of Deputy Prime Minister is fixed for the Orthodox Christian and that of the Speaker for Shia Muslims. Under this pact, the Christians agreed not to seek French protection and the Muslim agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria. तो ये पैक्ट ऐसा हुआ, जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने फ्रेंच से मदद मांगना बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमको ये पावर मिलता है तो हम फ्रांस से मदद नहीं मांगेंगे, और जो मुस्लिम ने कहा कि हम सीरिया के साथ में नहीं जुड़ेंगे. इस प्रकार से दे केम टू अ common conclusion. When the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population. जब ये अग्रीमेंट वाली बात आई थी तब क्रिश्चियन और मुस्लिम लगभग उनका पॉपुलेशन इक्वल था. Both sides have continued to respect this agreement, though now the Muslims are in clear majority. तो जब अग्रीमेंट हुआ था तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इक्वली पॉपुलेटेड थे, लेकिन अब बात बदल गई है. मुस्लिम्स की आबादी बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी में दिखाई देती है. मुस्लिम की आबादी काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ हुई, जितना रैपिडली क्रिश्चियंस ने अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ नहीं कर पाए या नहीं करना चाहे. खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट. ही इज़ अ पॉपुलर मैन विथ पॉलिटिकल एम्बिशन. मोस्ट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द टॉप पोजिशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच. तो खलील जो है, खलील को ये पसंद नहीं आता. क्यों? खलील एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, एक काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है, और उसके बड़े बड़े सपने हैं, पॉलिटिक्स में बड़े बड़े सपने हैं. लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके अनुसार तो वो प्रेसिडेंट का पोस्ट उसको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्रिश्चियन सेक्ट को नहीं बिलोंग करता. कौन सा क्रिश्चियन सेक्ट है? द माइनोराइट सेक्ट ऑफ कैथलिक क्रिश्चियंस, उसको बिलोंग नहीं करता. इसकी मम्मी क्या है? सिया मुस्लिम है, और डैडी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है. खलील डज नॉट प्रैक्टिस आइदर हिज फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू बी नोन बाय ईदर. ना ही वो मुस्लिम का धर्म पालन करता है, सिया मुस्लिम का धर्म पालन करता है, और ना ही वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कम्युनिटी का फॉलो करता है, और वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता है ऐसा वो नहीं मानना चाहता है. ही कैनॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनान कांट बी लाइक एनी अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी.
उसको लगता है कि पता नहीं लेबनान जो है ये बाकी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह क्यों नहीं है। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, allow everyone to contest, and whoever wins maximum votes become the president, no matter which community he comes from. Why can't we do that like the other democracies of the world, he asks. His elders, who have seen the bloodshed of the civil war, tell him that the present system is the best guarantee for peace. खलील क्या है, यंग इंसान है, तो सोचता है जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी होती है यार, जो सबसे पॉपुलर होता है वो वोट्स जीतता है और वो सबसे बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है, तो हमारे देश में, हमारे लेबनान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने यहाँ पर सिविल वॉर देखा है, वो उससे समझाते हैं कि शांति के लिए यही तरीका फ़िलहाल सही है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच द टीवी टावर वे दे स्टॉप्ड एवरी डे. Vetal wrapped up quickly and posed his customary question to Vikram. If you had the power to rewrite the rules of Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere, as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? Vetal did not forget to remind Vikram of the basic pact. If you have an answer in mind and yet do not speak up, your motorbike will freeze and so will you. तो यहाँ पर टीवी टावर के पास आकर वेताल और विक्रम रुक गए। तो वेताल ने यहाँ पर अपना सवाल पूछा, जैसे कि वह हर वक्त पूछता आ रहा था। उसने पूछा, अगर तुम्हारे पास ये अधिकार होते यहाँ के कानून को बदलने का, तो आप क्या करते। खलील जैसा कहता है कि जो पॉपुलर इंसान है, जो सबसे मैक्सिमम वोट लेकर आया, वही सही तरीका है, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, या फिर आप जो पुराना नियम है उसके साथ ही लगे रहोगे। वेताल जाने से पहले बोलता है कि देखो, अगर आपको जवाब पता होगा तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपको जवाब पता रहने के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया, तो आपकी गाड़ी बर्फ़ बन जाएंगी और आप भी उसी की तरह बर्फ़ बन जाएंगे। तो क्या आप बेचारे विक्रम की मदद करना चाहोगे? वेताल ने जो सवाल किया उसका जवाब आपके पास होगा, तो बेचारे विक्रम की आपने मदद करना चाहिए। हम यहाँ पर रुकते हैं। चैप्टर का बाकी हिस्सा हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।